हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम पहले फ्रैक्शन क्या होता है वो देखेंगे, देन इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट एंड इसके टाइप्स, एंड उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं एंड ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज a fraction? So fraction is a part of whole. Okay, suppose I have this circle. Okay, this circle I am having. If I divide this circle into two equal parts like this, then this is become a half and half part. Okay, this will become 1/2 and this also will become 1/2. Okay, what if I will divide the same circle into the three parts like this. So this is the one part and this is another part. So these three parts. Okay, if I divide this circle into three parts, then what will happen? It will become 1/3, and this part is also become 1/3, and this part is also become 1/3. So what is the fraction? Means fraction is a part of whole. So here one is the thing, we have the whole thing, and two, we have divided the whole thing in how many parts. Okay, जैसे कि सर्कल है, इस सर्कल को मैंने दो भागों में बांटा, इस सर्कल को मैंने क्या किया, दो भागों में बांटा तो ये 1/2 हुआ। एक सर्कल को दो भागों में बांटा तो 1/2। ऐसे ही एक सर्कल को अगर तीन भागों में बांटा तो 1/3। ठीक है, तो जो 1 है वो हमारा होल पार्ट होता है, एंड 2 जो है जितने पार्ट में हम उसको डिवाइड करे हैं वो वैल्यू होता है। अब जैसे ये 7/3 लिखा है, तो 7 सर्कल को मैं तीन भागों में बांटूंगी। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, 7 चॉकलेट्स हैं, उनको तीन बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड करना है। ठीक है, आई हैव 7 चॉकलेट्स, तो तीन बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड करने के लिए मुझे इसको 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 7/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, so this is the fraction, and here 7 is the numerator and 3 is the denominator. Okay, so this is the fraction. Now move on to the next slide. Type of fraction, we have different type of fraction here. First is unit fraction, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, and equivalent fraction. Okay, so what is unit fraction? Unit fraction means we have 1 in numerator. Okay, like 1/9, 1/5, we have 1 in numerator. Okay, so this comes under unit fraction. Proper fraction means we have numerator less than denominator. Okay, suppose 2/3, so 2 is less than 3 means numerator is less than 3, so it become proper fraction. Improper fraction means we have numerator greater than the denominator. So here 9 is which is greater than the 5. Okay, so now move on to the next slide. Mixed fraction. What is mixed fraction actually? Mixed fraction is a proper fraction with a whole number. Okay, now we all know what is whole number. So this is a whole number 1, 6 and 4, and this is proper fraction. The combination of proper fraction with a whole number is called a mixed fraction. And mixed fraction हमारे पास आते कहाँ से हैं? mixed fraction जो है वो improper fraction से बनते हैं, जैसे कि 5/3 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 and 2/3. This is called mixed fraction and this is improper fraction. Okay, so improper fraction से ही हमारे mixed fraction आते हैं। ठीक है, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन काय के कॉम्बिनेशन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर के। ठीक है, तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है तो वो कैसे होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल करके होगा। ओके, नाउ लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन जस्ट सेम डिनोमिनेटर होगा, जैसे कि इसमें 4/2 एग्जाम्पल में देखो 4/2 है, इधर 7/2 है, 9/2 है, तो जो 2 जो है डिनोमिनेटर में है एंड दोज वैल्यूज आर सेम, तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे कि इधर 9 है, 12 है, 4 है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट्स है, तो ये कैसी फ्रैक्शंस है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। ओके,
ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करने पे सेम वैल्यू मिले, जैसे कि 9/12 है इधर, ठीक है, इधर क्या है 6/8। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा 9/12, तो कितना आ जाएगा 3/4। एंड 6/8 जो है वो अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3/4। ओके, सो जो 3/4 है जो सेम वैल्यू आई ना हमें सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं? ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ओके, नाउ हमें यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता चल गया, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ आवर फ्रैक्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल से समझ में आ रहा होगा रिवर्स डायरेक्शन। सपोज वी हैव फ्रैक्शन a अपॉन b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b/a। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2। ऐसे ही ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/8। अब ये जो लाइन है, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1, व्हाट डज इट मीन्स? सो दिस इज द फ्रैक्शन 2/3 एंड इफ आई प्रोडक्ट this number with its reciprocal 3/2, it will always get 1. Okay, this is not only for 3/2, any number. Suppose we have 5/6, then reciprocal of this is 6/5. If we product this, it will also get 1. Okay, so I think this is clear for you guys. Now move on to the next slide. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, परसेंटेज मेथड है एंड एलसीएम मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो इस तरीके से आगे बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे कि अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, हमें बताना है कि इसमें जो वैल्यू है कौन सी बड़ी है। तो अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो कैसे होगा? 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28। ओके, एंड 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30। ओके, सो इन दोनों में कौन सा बड़ा आया? 30। तो ये जो है 6/7 ये बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर, एंड 4/5 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऐसे ही 4/7 है, 6/7 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो 4 7 जा 28 आएगा एंड 6 7 जा 42 आ जाएगा। तो 6/42 यानी कि इन दोनों में ये बड़ा है, तो 6/7 फिर से बड़ा हो जाएगा एंड 4/7 कैसा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। ओके, नाउ अब जैसे ये तो 2 नंबर्स थे, ये कितने नंबर थे? 2 नंबर्स थे, सॉरी ये 2 नंबर्स थे, तो यहाँ पर तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लिया। अच्छा, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि 4/5, इसको जैसे परसेंटेज मेथड में करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 4/5 है, इसको क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड देंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा कुछ 20 एंड 4 2 जा 8, सो ये आ जाएगा 80%। ओके, ये आ जाएगा 80%। एंड 6/7 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 7 से जाएगा ये 10, यानी 1 बार 1 100 1 एंड 3 7 3 4 28 14 पॉइंट कुछ आएगा। एंड इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट 6 4 5 24 6 24 4 कैरी 2 6 7 8
84 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, इसका मतलब यही बड़ा आया, 84 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम परसेंटेज में भी कर सकते हैं हम सारे के सारे सवाल, ठीक है। तो ये दो नंबर्स के बीच का कंपैरिजन था। ओके, नाउ मूव फर्दर। अब हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं जो दो से भी ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। तो एलसीएम मेथड में क्या करेंगे ना, हम जो भी हमारे पास नंबर्स, जो भी फ्रैक्शन गिवन है, उनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 13 और 15 का डिफरेंस 2 आएगा, 11 एंड 13 का डिफरेंस भी 2 आएगा, एंड 21 एंड 23 का डिफरेंस 2 आएगा, 29 एंड 31 का डिफरेंस भी 2 आएगा। सो हमारे पास डिफरेंस सेम आया है। जब सेम डिफरेंस आया है तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम जो है इसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर 29 है तो 29/31 जो है वो होगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। एंड विच इज स्मॉलेस्ट, जैसे 11 सबसे छोटा है तो 11/13 क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। और अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, देन सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे 13/15 आएगा, एंड फोर्थ नंबर पे 11/13 आएगा। ओके, सो अब ये तो थे हमारे इसमें डिफरेंस जो थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब अगर हमारे पास ये सेकंड सवाल है, इसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 15 और 17 का डिफरेंस तो 2 आएगा, 21 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा 4, 41 और 51 का डिफरेंस कितना आएगा 10, एंड 40 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा 20। तो अब ये डिफरेंस जो है ना अलग आए हैं, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको इनके डिफरेंस से न्यूमरेटर को डिवाइड देंगे। तो 15 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। 21 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा ये 5.2 समथिंग कुछ आएगा, एंड 41 को 10 से डिवाइड देने पे 4.1 आएगा, एंड 40 को 20 से डिवाइड देने पे कितना आ जाएगा 40 को 20 से डिवाइड देने पे ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें हमारा फिर क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे ये होगा, थर्ड नंबर पे ये होगा, एंड फोर्थ नंबर पे ये हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा इसमें अब ऑर्डर हो जाएगा। तो अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर जो है ना, सॉरी डिनोमिनेटर जो है ना हमारे पास इन फ्रैक्शंस में, ये हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है बड़ा है। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड देंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएंगे, और अगर पॉइंट्स में आंसर आएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हम मतलब कैलकुलेट करने में। तो इसलिए हमने इसका डिफरेंस निकाला। अगर सेम डिफरेंस है तो डायरेक्टली हम इसका आंसर बता सकते हैं, और अगर डिफरेंस जो है अलग अलग आए हैं तो हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस से हम न्यूमरेटर को डिवाइड देंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे। Okay, I hope this is clear. Now move on to the next, LCM and SCF. अगर LCM and SCF फ्रैक्शन में निकालने को बोला है तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर का LCM लेंगे एंड डिनोमिनेटर का SCF। ऐसे ही SCF निकालने को बोला है तो न्यूमरेटर का SCF ले लेंगे एंड डिनोमिनेटर का LCM। तो अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो होगा LCM निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 275 का क्या निकालना होगा LCM, जो कि हो जाएगा आई थिंक 70, एंड 396 का हम निकालेंगे SCF, तो इसका SCF आएगा 3 into 3, तो 70/3 जो है इसका LCM आ जाएगा। एंड SCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का SCF लेंगे तो वो आएगा 1, एंड डिनोमिनेटर में जो है इसका LCM ले लेंगे तो वो आ जाएगा 18। तो ये जो है इसके LCM एंड SCF हो जाएंगे। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, सो ट्राई टू सॉल्व इट and find out LCM and SCF for this fraction, and please comment your answer. Okay, so
Thanks for your watching. If you like my videos, please do like and share with your friends and do subscribe my channel. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.